ہے جب بلڈوزر سے فیصلے ہوں گے، جب پولیس کھلے عام انکاؤنٹر کرے گی، عدالتوں تک جب بات نہیں پہنچے گی تو عدالتوں کے وجود کی اہمیت کیا رہ جائے گی؟ ہم عدالتوں کی حمایت میں کھڑے ہیں، ہم سنویدھان کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ روی داس مندر کو توڑ دیتے ہیں، یہ جب چاہتے ہیں مسجد کو توڑ دیتے ہیں، یہ جب چاہتے ہیں ان کا ہنومان چالیسا بھی مسجد کے ہی آگے ہنومان جی قبول کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو بند کیا جانا چاہیے، سپریم کورٹ کو سنجان لینا چاہیے۔ ہم نے صبر کیا ہے اس لیے نہیں کہ ہم کمزور تھے، بلکہ اس لیے کہ ہم اپنے ملک کی ایکتا اور اکھنڈتا سے پیار کرتے تھے۔ نکلا کہ ہمیں بزدل سمجھا گیا، اور آج میں کہتا ہوں کہ اگر لوگ بیدار نہ ہوئے، گیان واپی اسی طریقے سے، اسی بے ایمانی کے طریقے سے گیان واپی یہ لوگ چھین لیں گے، اسی طریقے سے مسرا کو آپ سے چھین لیا جائے گا، عیدگاہ کو آپ سے چھین لیا جائے گا، اسی طریقے سے یکے بعد دیگرے، کبھی بدایوں کی مسجد پر حملہ کیا جائے گا، کبھی عیدگاہ پر حملہ کیا جائے گا، کبھی جامع مسجد پر حملہ کیا جائے گا۔ اگر اپنی مسجدوں کو اسی طرح صبر کرنا ہے، کہیں تو ختم ہونا چاہیے یہ طریقہ، کبھی تو ہمیں کھڑے ہو کر اپنی بات رکھنی ہوگی۔ تو میں نے اعلان کیا ہے کہ بابری مسجد کے بعد بس ہماری آستھا کی بھی اہمیت ہے۔ ہم نے بابری مسجد کو صبر کیا ہے، گیان واپی کو صبر نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ یہ لڑائی سڑکوں پر لڑی جائے گی۔ ہماری آستھا کورٹ سے اوپر ہے، ہم نے کہا تھا کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں وہ منظور ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری آستھا کورٹ سے اوپر اس لیے ہے کہ ہم ایک بار بے ایمانی کورٹ کی دیکھ چکے ہیں، دوبارہ دیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ حاضرین اکرام السلام علیکم۔ تقریر کا وقت نہیں ہے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے بہت تکلیف کا وقت ہے، کیونکہ لنچ کا ٹائم بہت پیچھے گزر چکا ہے اور یہاں تمام لوگ پریشان ہیں کہ کھانا کب ہوگا۔ بہرحال کھانا تو چاہیے، اپنے وقت پہ ہونا چاہیے، لیکن کچھ بے چینیاں، کچھ پریشانیاں ایسی ہیں جو ان تمام تکلیفوں سے اوپر اٹھ کر ہمیں جدوجہد کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ اور میں اس وقت گومگو کسی کیفیت میں ہوں کہ کیا کہوں کہ کیا نہ کہوں۔ عالم یہ ہے عالم یہ ہے کہ ایک دو زخم نہیں، سارا بدن چھلنی ہے۔ درد بیچارہ پریشان ہے، کہاں سے اٹھے؟ کن کن تکلیفوں کا ذکر کیا جائے، کن کن پریشانیوں کا ذکر کیا جائے، لیکن سب سے بڑھ کر اور سب سے بہتر بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں بانٹو اور راج کرو کا رواج انگریز بنا کر گیا ہے، اور اسی انگریز کے طریقے پر آج کالا انگریز حکومت کر رہا ہے۔ اگر اس طریقے کو ہم نے پہچان لیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ تمام لوگوں کو، دبے کچلے تمام لوگوں کو، مظلوم تمام لوگوں کو متحد ہونا چاہیے۔ ہم طاقت حاصل کرنے کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے دیش سے پیار ہے، ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کی عدلیہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے دیش کے سنویدھان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آج عدلیہ کو ہندوستان میں ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب بلڈوزر سے فیصلے ہوں گے، جب پولیس کھلے عام انکاؤنٹر کرے گی، عدالتوں تک جب بات نہیں پہنچے گی تو عدالتوں کے وجود کی اہمیت کیا رہ جائے گی؟
हम अदालतों की हिमायत में खड़े हैं, हम संविधान की हिमायत में खड़े हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, गुज़श्ता साल भी मैंने इस बात को नोटिस किया था और इस साल भी मैंने नोटिस किया कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए दिवाली के पटाखों पर पाबंदी लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की हुक्मदूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा होकर तमाम लोगों ने आतिशबाजी छोड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई नोटिस नहीं लिया। ये चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था पुलिस को ऑर्डर करते कि जिन जिन लोगों ने किया है उन तमाम को जेल में डाला जाए। तो सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी अहमियत को नहीं समझ रहा है, सुप्रीम कोर्ट अगर हुकूमत की दबाव में काम कर रहा है, तो हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें काम करना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि देश जाग रहा है, जनता जाग रही है, लोग महसूस कर रहे हैं जो बेईमानियां हो रही है, ये बेईमानियां अब होने नहीं दी जाएंगी क्योंकि अवाम में बेदारी आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऐसे फैसले जिन पर एतराज़ किया जाना चाहिए। अभी मैं इतना जिक्र और ज़रूर करना चाहूँगा और ख़ास तौर से मुसलमानों से और अपने दलित भाइयों से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जब चाहते हैं रविदास मंदिर को तोड़ देते हैं, ये जब चाहते हैं मस्जिद को तोड़ देते हैं, ये जब चाहते हैं इनका हनुमान चालीसा भी मस्जिद के ही आगे हनुमान जी कबूल करते हैं। इन तमाम चीज़ों को बंद किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। बाबरी मस्जिद को हमने सब्र किया है इसलिए नहीं कि हम कमज़ोर थे, बल्कि इसलिए कि हम अपने मुल्क की एकता और अखंडता से प्यार करते थे। हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपने देश में अमन व अमान बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर आंखों पर लिया और किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया। लेकिन नतीजा ये निकला, हमारे सब्र का नतीजा ये निकला कि हमें बुज़दिल समझा गया। और आज मैं कहता हूं कि अगर लोग बेदार ना हुए तो ज्ञानव्यापी उसी तरीके से, उसी बेईमानी के तरीके से ज्ञानव्यापी ये लोग छीन लेंगे। उसी तरीके से मथुरा को आपसे छीन लिया जाएगा, ईदगाह को आपसे छीन लिया जाएगा। उसी तरीके से यके बाद दीगरे, कभी बदायूं की मस्जिद पर हमला किया जाएगा, कभी ईदगाह पर हमला किया जाएगा, कभी जामा मस्जिद पर हमला किया जाएगा। अगर अपनी मस्जिदों को इसी तरह सब्र करना है, कहीं तो ख़त्म होना चाहिए ये तरीक़ा। कभी तो हमें खड़े होकर अपनी बात रखनी होगी। तो मैंने ऐलान किया है कि बाबरी मस्जिद के बाद बस हमारी आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञानव्यापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हमारे प्राचा साहब कोर्ट में मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम तमाम मुसलमान सड़कों पर मस्जिद की हिमायत में लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई वो नहीं होगी, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है, हमें दिखाना है कि हम बेदार हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर है, हमने कहा था कोर्ट का जो फैसला होगा हमें वो मंजूर होगा। अब मैं कहता हूं कि हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर इसलिए है कि हम एक बार बेईमानी कोर्ट की देख चुके हैं, दोबारा देखने को तैयार नहीं है। यहाँ जो तमाम लोग शरीक हुए, मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और तवील गुफ्तगू का वक्त नहीं है, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारा
ये पूरा हिंदुस्तान जमा हुआ है। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हैं और इस इरादे से आए हैं कि आज कोई फैसला होगा। और मैं ये चाहता था कि पहले मैं अपनी तजवीज़ रख दूं, उसके बाद आप तमाम लोगों की राय ली जाए, लेकिन कुछ निज़ाम चेंज हो गया, थोड़ी अफरा तफरी भी रही। हमारे सामने 24 है और मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर सरसरी तरीके से देखा जाए तो सिर्फ 2 पार्टियां आमने सामने हैं। उन्हीं दोनों के दरमियान पहले और दूसरे नंबर का फैसला होना है। तो इसमें हमारा क्या रोल है, हमारा क्या रोल रहना चाहिए? हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदुस्तान में कैसी हुकूमत आनी चाहिए ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें बांटा गया है, अगड़े और पिछड़े में बांटा गया है, जबकि हमारे यहाँ इस्लाम में न कोई अफजल है, न कोई अशरफ है, न कोई अफजल है। अगर अफजल है तो अपने आमाल की बुनियाद पर है, लेकिन अगर अशरफ है तो अपने आमाल की बुनियाद पर है। अगर मस्जिद में किसी के साथ तासुब होता है तो ये शर्म की बात है। मस्जिद में अगर अशरफ और अफजल नहीं है तो फिर किसी मामले में नहीं है। शरीयत के खिलाफ है ये बात जो हुकूमत हमारे मुसलमानों में ख़ास तौर से बंटवारा पैदा करने की कोशिश कर रही है। इसके खिलाफ भी हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। तो 24 के हवाले से मैं इस तरह कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में कौन सी हुकूमत बने, कैसी हुकूमत बने। मैंने आमतौर से मुसलमानों का रुझान देखा कि चुनाव आने दो, अब के देख लेंगे, मोदी को जीतने नहीं देंगे। मैंने कहा मोदी को हरा दो, फिर किसको लाओगे? जो आएगा वो तुम्हें कंगन पहनाएगा। पहले पहनाए हैं, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस पहले भी 10 साल रही है, 10 साल यूपीए की हुकूमत रही। वक्त याद करो, रोजाना तुम्हारे बच्चों का इनकाउंटर हुआ करता था, रोजाना बम ब्लास्ट हुआ करता था।